Hello everyone. So here we have a question from JEE Advanced 2021. The question is on inverse trigonometric functions. You can see, we can start reading the question. Let for any positive integer n, Sn is 0 to infinity to r. एक function आपने define किया है 0 to infinity, that is domain is positive real numbers to r. This is defined by this S function, and where this x is a real number. Cot inverse x is between 0 and pi. Principal range we know this. Tan inverse x minus pi by 2 to pi by 2. Again we know that principal range of tan inverse x is between minus pi by 2 to pi by 2. ठीक है, तो उन्होंने इनडायरेक्टली क्या बोला, आपको प्रिंसिपल रेंजेस में ही डील करना है. ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू. अब अगर आप ऑप्शन को देखो, आपको अल्टीमेटली सबके लिए फॉर ऑल द ऑप्शंस यू हैव टू चेक एस एक्स. व्हाट इज दिस एस एन एक्स फंक्शन. ठीक है, एस एक्स डिपेंडेंट ऑन एन. तो आपको अगर इसको सॉल्व करना है तो आपको फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व दिस सिग्मा. और इस सिग्मा को आप ध्यान से देखो, दिस इज वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन. कैसे इस टाइप के आप सिग्मा सॉल्व करते हो. कॉट इनवर्स, व्हाट इज द जनरल टर्म ऑफ दिस सीरीज. जनरल टर्म ऑफ दिस सीरीज आई कैन से दिस इज इक्वल टू, देखो कॉट इनवर्स x को हम tan इनवर्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. इफ x इज पॉजिटिव tan इनवर्स x इज cot इनवर्स 1/x. मतलब यहाँ पे देखो एवरीथिंग इज पॉजिटिव, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, cot इनवर्स x इज tan इनवर्स ऑफ इनका रेसिप्रोकल. सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1 upon x upon 1 plus k plus 1 x square. And now just observe this, I can write this x as a difference of these two terms. अगर ये x into y है तो इसके टर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. कैसे, तो just observe this. Can we say this x can be written as k plus 1x minus kx. You can see this x को I can write this as k plus 1x minus kx. You can see this, right? So now what is this? इसको आप ध्यान से देखो, ये कुछ इस टाइप का फॉर्म है. This is a standard way. ये कुछ इस टाइप का फॉर्म है, tan inverse x minus y upon 1 plus x1. इस टाइप का फॉर्म है. You can see tan inverse x minus y upon 1 plus, इन दोनों का प्रोडक्ट is this k plus 1 x square. So I can say what is this tan inverse x k. This is general term. This is tan inverse x minus tan inverse y, right? This is tan inverse x minus tan inverse y. ये हमको पता है, right? अब k का जो वैल्यू है that is varying from k equal to 1 to n. तो हम k equal to 1 to n पुट करेंगे. तो this is k equal to 1 t1 tan inverse 2x minus tan inverse x. Then t2 tan inverse 3x minus tan inverse 2x, so on. Last में if I put n, k is equal to n हमने पुट कर दिया. This is tan inverse k plus 1x, n plus 1. k का वैल्यू हमने n पुट किया है लास्ट वैल्यू. This is n plus 1 x minus tan inverse nx. k का वैल्यू n पुट कर दिया. अब जैसे आप इनको ऐड करना स्टार्ट करोगे, यू कैन सी इफ यू ऐड दिस यू विल सी दैट दिस विल कैंसिल दिस टर्म, दिस विल कैंसिल दिस टर्म. सिमिलरली यहाँ पे जो टर्म्स होंगे वो सब कैंसिल हो जाएंगे. सो यू विल बी लेफ्ट विद ओनली दिस थिंग. दिस इज सम ऑफ दिस सीरीज विल बिकम tan inverse n plus 1 x minus tan inverse x. This is tan inverse n plus 1 x और ये माइनस tan inverse x. तो ये आपने सीरीज को सॉल्व कर लिया. इसको आप चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. व्हाट इज दिस? दिस इज tan inverse x minus y upon tan inverse x minus tan inverse y. This is tan inverse x minus y. So you can see इन दोनों का डिफरेंस nx upon 1 plus xy, इनका प्रोडक्ट n plus 1 x square. So we have got what is this function? This is tan inverse nx upon 1 plus n plus 1 x square. ये हमारे पास आ गया. अब आप सारे ऑप्शंस चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. ये फर्स्ट पार्ट क्लियर है कैसे हमने सीरीज को सॉल्व किया बाय यूजिंग टेलीस्कोपिक सीरीज. करेक्ट. So now we have got this. Now let's solve this. First option. What is S10x? तो S10 के लिए मतलब क्या हुआ? This is if I put n equal to 10, this will be tan inverse 10x. ठीक है, n का वैल्यू क्या पुट किया था हमने? 10 पुट किया था. This is 1 plus 11 x square. ये हमारे पास है. ठीक है, तो आप ध्यान से देखो व्हाट इज दिस. ये सब नंबर पॉजिटिव है.
and we know tan inverse x, we know tan inverse x plus cot inverse x, this is equal to pi by 2, ये तो हमको पता ही है, correct? So can I say this is equal to pi by 2 minus tan inverse 10x upon 1 plus 11 x square, correct? Tan inverse x is equal to, sorry, cot inverse, this is tan inverse x is equal to pi by 2 minus cot inverse x, तो ये cot inverse x हो गया, ठीक है? अब ऑप्शन देखो, अच्छा आपको यहाँ पे tan cot inverse की प्लेस पर tan inverse में दिया हुआ है, so you can see cot inverse x and tan inverse 1 by x are equal, so what is this value? This is equal to pi by 2 minus tan inverse, इसका रेसिप्रोकल कर दो बिकॉज सब कुछ पॉजिटिव वैल्यूज है यहाँ पे, 11x square upon 10x, so this part you can see this is pi by 2 minus tan inverse 1 plus 11x square upon 10x, मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट? तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्लियर, राइट? सिंपल पार्ट है, इसमें बस n इक्वल टू 10 पुट कर दिया। सेकंड देखो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी cot of SNX, ठीक है? तो नाउ सी, अब देखो यहीं पे आप सॉल्व, देखो आपको n टेंड्स टू इंफिनिटी cot SNX का, इसका cot में, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान से देखना, कैन वी से SNX is equal to tan inverse this, or you can say this is cot inverse of nx, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1 plus n plus 1x square upon nx, क्या किया हमने? Sn is this tan inverse cot inverse 1 by x are equal for positive numbers, तो you can see सब कुछ पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है? तो इसका रेसिप्रोकल करके cot में कन्वर्ट कर दिया, so what is cot of Sx function? This is equal to 1 plus n plus 1 x square divided by nx, ये आपके पास आ गया, ठीक है? अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अब n टेंड्स टू इंफिनिटी पे इसका वैल्यू क्या होगा? तो अब इसका आपको लिमिट फाइंड करना है, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी cot Sx will be equal to limit n टेंड्स टू इंफिनिटी। नाउ सी, अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो हम क्या करेंगे? इस चीज को देखो n से डिवाइड कर दो, तो जैसे आप n से डिवाइड करोगे दिस विल बिकम 1 by n plus 1 by n plus 1 x square divided by x, I hope this is clear। n से डिवाइड कर दिया हमने, दिस इज 1 by n, 1 by n मतलब 1 by n हो जाएगा और ये x, करेक्ट? क्यों ऐसा किया? बिकॉज n टेंड्स टू इंफिनिटी पे 1 by n will approach to 0, तो you can see this term will become 0, this term will become 0, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा x square और डिनोमिनेटर में होगा x which will become x, तो आई होप दिस इज क्लियर। तो मतलब ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट आंसर, करेक्ट? नाउ ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में क्या है? द इक्वेशन s3x is equal to pi by 4 has a root in 0 to infinity, मतलब अगर s3x का वैल्यू pi by 4 है तो उसका जो रूट होगा x वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा, वो हमको चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? s3x फाइंड कर लेंगे, ठीक है? तो आई होप दिस टू पार्ट्स आर क्लियर, तो आई एम जस्ट रिमूविंग दीस टू पार्ट्स, ठीक है? नाउ व्हाट इज s3? so that is if I put 3 n equal to 3, n equal to 3 पुट कर दो, this is tan inverse, this is n equal to 3, 3x upon 1 plus 4x square, ये आपके पास एक्सप्रेशन है, n equal to 3 पुट कर दिया आपने, करेक्ट? अब इसका वैल्यू क्या है? pi by 4, तो व्हाट डज दिस इंप्लाई? 3x upon 1 plus x 4x square, this should be equal to 1, करेक्ट? tan pi by 4, so यहाँ पे we have a quadratic equation 4x square minus 3x plus 1 equal to 0, 4x square minus plus 1 minus 3x, करेक्ट? so इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, this is 4x square plus 4x minus, अच्छा हमको वैल्यूज फाइंड करना पड़ेगा आपको, x is equal to minus b plus minus b square, ठीक है? और माइनस 4ac, अरे इसका तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया, you can see this is discriminant will be equal to 9 minus 16 which is less than 0, अगर d less than 0 मतलब इसका कोई रियल रूट होगा ही नहीं, नो रियल रूट, करेक्ट? तो मतलब ऑप्शन सी is not a correct answer, you can see d less than 0 आ रहा है, that is not correct answer। अब लास्ट ऑप्शन क्या है? tan SNX is less than equal to 1 by 2,
for all n greater than equal to 1 and x greater than 0. तो tan Snx मतलब आपके पास क्या है, ये tan Snx क्या होगा, ये Sx, this is, so can we say tan of Sx function, this is equal to nx upon 1 plus n plus 1 x square. और यहाँ पे क्या है, n जो है, n जो होगा that will be obviously greater than or equal to 1 होगा, ठीक है, ये n greater than equal to 1 होगा, राइट, और x जो होगा that will be greater than 0, x greater than 0 मतलब क्वेश्चन में मेंशन किया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, that Snx this tan of this मतलब ये जो क्वांटिटी है this is less than equal to 1/2 for every value of n greater than 1 and x positive, करेक्ट। आपको ये सोचना है, आपको ये चेक करना है कि क्या ये वैल्यू हमेशा, क्या ये वैल्यू हमेशा 1/2 से बड़ा है, ये लेस देन है, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू 1/2 से कम है वो हमको चेक करना है। तो अब इसको कैसे चेक करें, तो आप ध्यान से देखो थोड़ा सा, मतलब आपको ये सोचना होगा कि ये जो फंक्शन है क्या बाउंडेड है, मतलब इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू 1/2 हो सकता है, ठीक है, या फिर हमेशा ये उससे कम होगा, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा ध्यान से देखो इसमें, अगर हम थोड़ा सा ट्रिकी मतलब थोड़ा सोचे इसके बारे में, तो अगर हम n टेंड्स टू इंफिनिटी की बात करें, एंड क्योंकि n तो कुछ भी सकता है ग्रेटर देन 1, तो इफ आई टेक अ वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ n, तो इसका जो वैल्यू होगा व्हाट विल बी दिस वैल्यू, n टेंड्स टू इंफिनिटी पे यू कैन सी हियर, n टेंड्स टू इंफिनिटी पे जब आप इसका लिमिट फाइंड करोगे दिस विल बिकम n से 1 x से डिवाइड कर दिया हमने, n से डिवाइड कर दिया, सॉरी, दिस विल बिकम x अपॉन 1 by n plus 1 by n plus 1 x square, and now you can clearly see this is equal to 1 by x, करेक्ट। ये देख लो n टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये 0 हो जाएगा, x by x मतलब x स्क्वायर मतलब 1 by x आ गया। तो n टेंड्स टू इंफिनिटी पे दिस फंक्शन विल अप्रोच टू 1 by x, और 1 by x अप्रोचेस 0 पे विल अप्रोच टू इंफिनिटी, क्योंकि x तो कुछ भी सकता है ग्रेटर देन 0। मतलब आप ऐसा समझ रहे हो कि ये जो फंक्शन होगा ये बाउंडेड होगा ही नहीं, फॉर सम वैल्यू इट विल डेफिनेटली अप्रोच टू इंफिनिटी, बिकॉज x कैन बी एनी वैल्यू व्हिच इज ग्रेटर देन 0। तो आप यू कैन सी 0 प्लस पे दिस इज अप्रोचिंग टू व्हाट, इंफिनिटी, मतलब दिस कैन नॉट बी अ बाउंडेड फंक्शन, ये बाउंडेड फंक्शन नहीं हो सकता, मतलब इट कैन नॉट बी लेस देन हाफ, मतलब अपर लिमिट इसका हाफ हो ऐसा जरूरी नहीं, इट विल गो टिल इंफिनिटी, इट विल डेफिनेटली गो टू इंफिनिटी। सो दिस इज option D is correct answer. We will say this is never satisfied because this function will definitely go to infinity if these conditions are there. So I hope this last part is clear. अब इस क्वेश्चन में देखो ट्रिकी पार्ट तो यही था, बस डी पार्ट, बाकी तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन कैसे आप नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को सॉल्व करते हो, टेलीस्कोपिक मेथड है, और इसमें भी ये बिल्कुल स्टैंडर्ड सीरीज है, tan inverse x minus y upon 1 plus xy को यूज करने वाला, ठीक है। So I hope this part is clear, this question is clear. So that's it for this question. Thank you, bye bye.